Hello dear learners, hope you are doing well. As you all know, we are doing this PYQ series for a quite while now, and we have completed the paper 2, which was history, up till 2016, from 2023 till 2016. Here also we are going through the paper 1 of 2023, 21, 20, 19, 18, 17, and today the paper is of 16. And we are doing a very crisp revision of all the important terms which will be required in the exam. You can go through the videos and just check out what you are missing. I am also trying to cover some extra points so that the video will become more helpful. If you like it, please do continue till the end. Now, moving further without wasting much of our time as the exam is approaching. So, let's get started. Here the paper is of 60 questions and that too for 100 marks and no negative marking. 60 क्वेश्चंस है, उसमें से 50 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ कोर्स कंटेंट इन डे टू डे लाइफ इज मेनली अचीव्ड थ्रू. एप्लीकेशन ऑफ कोर्स कंटेंट, जो पढ़ाई की है उसका एप्लीकेशन किसके थ्रू अचीव करते हैं? प्रोजेक्ट मेथड. यूजुअली टर्म के एंड में प्रोजेक्ट्स देते हैं. वो इसीलिए देते हैं ताकि स्टूडेंट्स ने कितना लर्न किया है वो पता चले. So, the project method is an educational method in which children or learners solve a practical problem over a period of time. It is a student-centered method. Then demonstration method. It is a method in which communication of idea with the aids of visuals such as charts, PowerPoints, etc. A demonstration is a process of teaching someone how to make or do something. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड रहता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड. फील्ड विजिट, इट इज़ द टाइप ऑफ पेडोलॉजिकली इम्पॉर्टेंट. सो इट इज़ यूज टू एक्सपीरियंस द जोग्राफी ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन लाइक फील्ड सर्वेज एंड ऑल. देन इंक्वायरी मेथड इज अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स शुड आस्क क्वेश्चंस इफ दे हैव एनी डाउट्स. In order to monitor, question number 2, in order to monitor students' progress and to modify teaching accordingly, the best method of evaluation is, it is option A, formative evaluation. Formative evaluation is done before the course and during the process. It is a very important evaluation. It is done through oral testing or class test or question answer sessions. And summative evaluation is done at the end. Yes, after the course, like term and exams. Now question number 3, how would you prove that earth is round or not round is based on the objective. It is option B, evaluation is based on the objective of evaluation. It is according to Bloom's taxonomy. ये जो क्वेश्चन है पूरा Bloom's taxonomy बेस्ड है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर टू यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग. जैसे कि नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन आर मोर कॉन्क्रीट थिंकिंग होते हैं. जो नॉलेज रहता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, ये कैसे टाइप के होते हैं? कॉन्क्रीट. नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, ये कैसे? कॉन्क्रीट टाइप, कॉन्क्रीट थिंकिंग, कॉन्क्रीट थिंकिंग स्किल्स. एंड जो दूसरे वाले होते हैं इवैल्यूएशन, सिंथेसिस एंड लास्ट इज एनालिसिस. ये कौन से होते हैं? क्रिटिकल थिंकिंग टाइप के, critical thinking skills. Okay, then इसमें इवैल्यूएशन क्या होता है? वैसे इवैल्यूएशन में क्या यूज़ करते हैं? यूज़ ऑफ वर्ड्स सच एज assess, decide, measure, select, explain, conclude, compare, summarize. Encourage children to make judgments according to the set of criteria. Like आपको how would you prove, यहाँ पर प्रूव करना है. कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में. जैसे कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बेसिकली क्या होता है? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट. ऐसे 6 डिविजन्स में डिवाइडेड है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. ठीक है, तो इसमें जो इवैल्यूएशन है ये डिटरमाइन करता है प्रोग्रेस ऑफ समथिंग एंड एड इनसाइट्स फॉर फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स. ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर एक बार अच्छे से स्टडी कर लीजिए. और इफ यू डोंट हैव पॉइंट्स रिगार्डिंग इट, ask me, I will put it in the comment section. Moving further, which of the following is not essential for good teaching? So, human relations skills, communication skills, attractive personality, knowledge of appropriate teaching methods. So, इसमें क्या होगा? Attractive personality. It is not required because
what is important is communication skills, knowledge of the subject, knowledge of the teaching methods, human relation skills. जैसे कि people become teacher because they have love for children or they have confidence to teach. They love teaching students. They love to share their knowledge. Without any good relation, it is not possible. But for teacher, just like I have a relation with you of the subscriber and the learner, who are approaching me to learn. Okay. The most important purpose of guidance of student is to, fifth, the most important, it is to make them capable of helping themselves. उनको ऐसा काबिलियत उनमें बनाना कि वो अपने आप अपनी लाइफ को एक तरह से मोल्ड कर सके, लाइक प्रॉपर स्टेप्स ले सके अपने करियर के लिए, अपने लाइफ डिसीजंस के लिए. सो मेक देम कैपेबल ऑफ हेल्पिंग देमसेल्फ. Sixth, the best method of increasing the motivation to learn is explaining in the beginning the purpose of teaching a unit. Like अगर टीचिंग का, जैसे मैं आपको PYQ का इंपॉर्टेंस बोलती हूँ हर वीडियो में कि इससे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं या ऑप्शंस हेल्प करते हैं, तो ये मैं पहले बता देती हूँ, इसीलिए आपको इसमें फिर इंटरेस्ट आता है. सो एक्सप्लेनिंग द पर्पस ऑफ टीचिंग अ यूनिट स्टार्टिंग में अगर बता दिया तो आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आती, आगे जाकर डिसइंटरेस्ट नहीं होता है, स्टूडेंट्स अच्छे से ध्यान देते हैं. दैट्स इट. A research problem is primarily chosen depending upon its relevance, available funds, interest of research, availability of literature. Its relevance. कोई भी चीज़ को हम अगर स्टडी करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होगा. हम अभी भी सेट के लिए पढ़ रहे हैं बिकॉज इट हैज़ इंपॉर्टेंस इन आवर करियर. पेपर 1 पढ़ रहे हैं ताकि हमारा स्कोर हाई हो सके. ठीक है. वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या होते हैं? कवर्स इसेंशियल नीड्स और इश्यूज. फिर द प्रॉब्लम इज स्टेटेड लॉजिकली एंड क्लियरली. फिर it has actual facts, based on actual facts and evidences, and the research problem generates and encourages research questions. फिर उसके बाद में sufficient data होना चाहिए and the problem has an unsatisfactory answer or is a new problem. Last वाला थोड़ा weird है, I know. Which of the following is a primary source of information? It is option C, a research article published in a standard journal. But obviously अगर आपको primary source चाहिए तो वो original material उसमें रहना चाहिए, जैसे कि कुछ पब्लिश किया या रिकॉर्ड किया हुआ मटेरियल होना चाहिए. फिर प्राइमरी और कौन से होते हैं? पेरियोडिकल्स, डायरीज, रिटन अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, न्यूज़पेपर, टेक्निकल रिपोर्ट्स, देन कॉन्फ्रेंस पेपर्स, पेटेंट्स, रिसर्च आर्टिकल्स, ये सारे प्राइमरी सोर्स होते हैं. एंड व्हाट आर द सेकेंडरी सोर्स? ये बेस्ड होते हैं प्राइमरी सोर्स पर. ठीक है. जैसे कि बायोग्राफीज होते हैं, बायोग्राफीज, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग, पेरियोडिकल्स, रिव्यूज़. फिर टेक्स्ट बुक्स होते हैं, डिक्शनरीज, इंसाइक्लोपीडियाज, ईयर बुक्स, डायरेक्टरीज, स्टैटिस्टिकल सोर्सेज, ये सारे होते हैं सेकेंडरी सोर्स. ठीक है. और यहाँ पर एक है मल्टी ऑथर ट्रीटाइज. ये ट्रीटाइज का मतलब क्या होता है? ट्रीटाइज एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट ऑफ अ ब्रॉड सब्जेक्ट, लाइक इट इज़ इंसाइक्लोपीडिक इन कवरेज ऑफ द सब्जेक्ट. वो काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होता है, काफ़ी डिटेल्ड स्टडी होती है किसी चीज़ के ऊपर, एकदम सिस्टमैटिक होता है, कंसोलिडेटेड मैनर में होता है. एंड द रिसर्च इन द फील्ड विथ फुल ऑफ रेफरेंस टू द प्राइमरी सोर्स. मतलब प्राइमरी सोर्स को इट इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी सोर्स, ये समझ लो. ये सेकेंडरी को ऐसे भी लिखते हैं, सेकेंडरी सोर्स है. ठीक है. Then now, a research report showed that the population of a country increased from 20 million in 1941 AD to 60 million in 2000 AD. The study can be described as. So we have the solution as in our answer key. It is option C, longitudinal. Longitudinal. Yes, longitudinal is the answer. आंसर की में यही आंसर दिया हुआ है. थोड़ा वैलिड है, मतलब मैंने जहाँ पढ़ा था उससे, बट दिस इज़ द आंसर एंड वी हैव टू फॉलो द आंसर की. लास्ट हम आंसर की को ही फॉलो करेंगे. ओके. सो लॉन्जिट्यूडनल जो होता है उसका डेफिनेशन है, इट इज़ एन ऑब्जर्वेशनल स्टडी दैट एम्प्लॉयज कंटिन्यूअस और रिपीटेड मेजर्स टू फॉलो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स एंड ऑब्जर्व द सेम सेट ऑफ वेरिएबल्स ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड. मतलब सैम्पल ये किसके लिए यूज़ होता है? सैम्पल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि वैक्सीन या कुछ उसके लिए यूज़ होता है. ओके. तो यहाँ पर वैक्सीन लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बोला है ना, इसीलिए पॉपुलेशन भी, मतलब यहाँ पर उन्होंने 1941 दिया है और यहाँ पर 2000 दिया, तो ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से कौन सा यूज़ करते हैं? लॉन्जिट्यूडनल. ओके. समझा? दिस मे बी यूज टू स्टडी बिहेवियरल चेंजेस, एटीट्यूडनल चेंजेस और रिलीजियस इफेक्ट. दिस 3 इंक्लूड ट्रेंड स्टडीज़, कोहॉर्ट स्टडीज़ एंड पैनल स्टडीज़. मतलब एकदम सीधी भाषा में लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है लॉन्गर पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ होने वाले स्टडीज़ के लिए. हम फैक्टोरियल का भी देख लेंगे एक बार.
ये कब यूज़ करते हैं? concerns with the interdependence of factors. Actually, in many answer case, in many sites the answer is factorial, because इसमें कैसा बोला है कि interdependence बता रहे हैं. Though our answer is longitudinal, but when I researched about this question, the answer was factorial, क्योंकि factorial में interdependence of factors होता है. एक factor like dependent and independent factor एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. Then social क्या होता है? स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सोशल साइंसेज होता है ये. लाइक रिसर्चर वांट्स टू स्टडी वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ पीपल, इम्प्रूवमेंट ऑफ सैनिटेशन या फिर न्यू मार्केट फैसिलिटीज़, न्यू इम्पोर्ट प्रोडक्ट्स के बारे में, ऐसे सारी चीज़ों के लिए होता है सोशल वाला. ठीक है, जो सोशल लोगों से रिलेटेड होता है या फिर उसमें कुछ सोसाइटी की नीड छुपी होती है, वो वाले. देन क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? ऑल्सो नोन एज ट्रांसवर्स और प्रिवलेंस. मतलब ये क्यों होता है? स्टडी एनालाइजेस डेटा ऑफ वेरिएबल्स कलेक्टेड एट वन गिवन पॉइंट इन टाइम अक्रॉस अ सैम्पल पॉपुलेशन और अ प्री डिफाइंड. मतलब किसके लिए होता है ये? फैमिली मेम्बर्स के लिए. एट द टाइम ऑफ मैरिज पार्टी, स्टडी ऑन ऑल फैमिली मेम्बर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज. मतलब कैसे वेरिएबल्स के ऊपर स्टडी करना होता है इसमें. एनालाइज करो डाटा को और वेरिएबल्स को कलेक्ट कर एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर वो सारे वेरिएबल्स को कलेक्ट करेंगे, मतलब एक जगह लाएंगे. मुझे क्रॉस सेक्शनल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है एज़ कम्पेयर टू बाकी तीन. ओके, इफ़ यू हैव एनी ट्रिक्स प्लीज़ लेट मी नो. अ हाइपोथेसिस इज़ नॉट ऑलवेज डैश इन स्टडीज़. इसका आंसर क्या है? हिस्टोरिकल. ऑप्शन डी, हिस्टोरिकल. हाइपोथेसिस इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी इन हिस्टोरिकल स्टडीज़. हिस्टोरिकल स्टडीज़ कौन सी होती है? जो इट इज़ अ क्वालिटेटिव मेथड. हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? क्वालिटेटिव मेथड होता है जिसमें स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स होते हैं, देयर कॉज एंड इफेक्ट्स. और हाइपोथेसिस यूजुअली किसके लिए? मतलब हाइपोथेसिस का हमने 2018 के पेपर में डेफिनेशन देखा था, फिर 17 के पेपर में भी उसके बारे में था. तो हाइपोथेसिस क्या होता है? एक टेंटेटिव स्टडी होती है जिसके बाद में रिसर्च कंटिन्यू करते हैं. लाइक रिसर्च के पहले हाइपोथेसिस देते हैं. ठीक है, टेस्टेबल होती है, टेंटेटिव होते हैं. फिर अभी नॉर्मेटिव क्या होता है? नॉर्मेटिव रिसर्च लॉ मेकिंग रिसर्च होता है एक तरह से, मतलब लीगल रहता है, रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स, ये सब कुछ होते हैं उसमें. फिर कोरिलेशनल, ये क्या होता है? नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है कोरिलेशनल. ठीक है, हमने नॉर्मेटिव देखा, ये फुल लॉ मेकिंग वगैरह पे है. फिर कोरिलेशनल नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जिसमें स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप ढूंढते हैं बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो एक डाटा दिया हुआ है तो उनमें जो क्या रिलेशन होगा वो स्टडी करना. फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है परफेक्टली साइंटिफिक मेथड, जिसमें रिसर्चर यूजुअली चूजेज अ वेरिएबल दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड ट्राई टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल का. हाइपोथेसिस इन तीनों में नेसेसरी है पर हिस्टोरिकल में नेसेसरी नहीं है. वी आर टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टाइम ताकि हम साथ ही साथ सारे ऑप्शंस भी जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे. और ये रिसर्च मेथड, रिसर्च एप्टीट्यूड एंड टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर क्वेश्चंस यूजुअली इसी पॉइंट से रिलेटेड होते हैं, तो हमको ये एग्जाम में हेल्पफुल है. विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी? इट इज ऑप्शन बी, स्ट्रैटिफाइड. स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर दोज दैट क्लियरली स्पेसिफाई द प्रोबेबिलिटी. लाइक प्रोबेबिलिटी का मतलब, प्रोबेबिलिटी तो आपको मैथ्स में था ही कि कितने टर्न होंगे, कितने डाइस पर 6 आएगा, कितने डाइस पर 4 आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं प्रोबेबिलिटी. ठीक है, इसमें कुछ बायसनेस नहीं होता है. देन एस्टिमेशन में हेल्प करते हैं एरर्स के. फिर सैम्पल इवैल्यूएशन में भी हेल्प करते हैं. मेजर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स कौन से हैं? तो सिंपल, रैंडम, स्ट्रैटिफाइड है, स्ट्रैटिफाइड और फिर रैंडम सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है और सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. हम यहीं पर लिख ही देते हैं. ठीक है, कौन से है? लेट्स रिवाइज. सिंपल, रैंडम, फिर स्ट्रैटिफाइड जो अभी हमारा आंसर है स्ट्रैटिफाइड, देन रैंडम सैम्पलिंग, उसके बाद में क्लस्टर सैम्पलिंग, फिर कौन सा है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग. ये सारे किसके पार्ट है? ये सारे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के पार्ट है ये वाले. एंड जो बाकी ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, जजमेंट सैम्पलिंग है, फिर उसके बाद में कोटा सैम्पलिंग, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फिर हैपहज़ार्ड एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग,
ये सारे किसके पार्ट होते हैं? नॉन प्रोबेबिलिटी के। ये जो है दिए हुए ये है नॉन प्रोबेबिलिटी के, NP के, ठीक है। नो वे ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी का क्या होता है? इट इज़ वन इन विच देर इज़ नो वे ऑफ असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एलिमेंट और ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। लाइक इसमें कोई तरह से हम नहीं बता सकते हैं प्रोबेबिलिटी, एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। देन डू नॉट यूज़ द टेक्निक्स ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, इसमें कोई रैंडम सैम्पलिंग के टेक्निक्स नहीं यूज़ होते। ये काफ़ी लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी डिटेल में आपको स्टडी करना पड़ेगा। नोट्स चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। 12th, फील्ड स्टडी इज़ कंसर्न विथ रियल लाइफ सिचुएशन। अभी हमने पढ़ा था फील्ड स्टडी होता है रियल लाइफ बेस्ड, फील्ड पर जाकर पता करना चीज़ों के बारे में, कलेक्टिंग डाटा अबाउट यूजर्स, देयर नीड्स, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूइंग, ये सारे फील्ड स्टडी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये वाले क्वेश्चन है पैसेज बेस्ड। हम आज ज़्यादा टाइम पैसेज में नहीं डालेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर्स बोलने वाली हूँ आज, बिकॉज वी हैव टू कवर द वीडियो वेरी फास्ट। अ ट्रूली नॉन वायलेंट पर्सन हु वुड नॉट इवन हैव इल विल फॉर हिज एनिमी, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है। आपको पहले पैसेज में PDF प्रोवाइड कर दूंगी चैनल पर, टेलीग्राम चैनल पर। ये यहाँ पर दिया है, ये देखिए नॉन वायलेंट पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स। ये पूरा पैसेज आप पढ़ लीजिए एक बार टेलीग्राम ग्रुप पर, और आंसर्स भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। पहले क्वेश्चंस रीड कर लेना और फिर पैसेज में जाकर उससे रिलेटेड वर्ड्स जो होते हैं, जिससे वो पूरा पैसेज पढ़ने में भी टाइम नहीं लगता है, डायरेक्ट आंसर्स भी मिल जाते हैं। द आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस कंसर्न ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ऑप्शन डी। यस, 13th का B था, 14th का D है, देन 15th का है कंप्लीट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इट इज़ अ नॉन वायलेंट पर्सन इज ऑलवेज पैसिव। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है D, ऑप्शन D। ओके विद यू? मूविंग फर्दर, सॉरी 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर एक्चुअली आंसर की में दिया हुआ है C and B and C दिया हुआ है। नॉन वायलेंस इज प्योर लव फॉर ऑल whom we know and all living beings have their proper place in universe। एक्चुअली ये पैसेज में दिया हुआ भी है, यहीं पर यहाँ पर दिया हुआ है पैसेज में, मैंने पढ़ा था ये पैसेज पहले। इट इज़ प्योर लव, सी इट इज़ प्योर लव, ये पैसेज में दिया है, ठीक है। एंड यूनिवर्स के ऊपर भी दिया हुआ है पैसेज में ही। सो इसके आंसर्स दो आएंगे, 15th के B and C, फाइन। देन 16th का आंसर है, 16 का है ऑप्शन A, एट प्रेजेंट मैन इज पार्टली बीस्टली इन हिज बिहेवियर एंड एटीट्यूड। एंड देन 17th का नॉन वायलेंस इज प्योर लव, ये भी पैसेज में दिया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज इज ऑप्शन 18th का ऑप्शन है D, द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस, ऑप्शन D, द स्पिरिट ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है। नाउ ओके, फिर से अब कम्युनिकेशन पर है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फेस टू फेस इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अभी इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन है A, वर्बल साइंस और सिग्नल्स आर मोर इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एंड वैरायटी। ओके, हम बाकी भी पढ़ लेते हैं एक बार। नॉन वर्बल साइंस और सिग्नल्स आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, येस। इन केस ऑफ कन्फ्यूजन ओवर मीनिंग वर्बल साइंस आर ट्रस्टेड लेस, ओके। इन नॉन वर्बल साइंस और सिग्नल्स आर मोस्टली इनवॉलंटरी, नॉन वर्बल, ओके यस। तो वर्बल क्या होते हैं? जो ओरल होते हैं या रिटर्न होते हैं, एंड नॉन वर्बल क्या होते हैं? जो एक्शंस करते हैं हम लोग, वो होते हैं नॉन वर्बल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है? मोर इन टर्म्स ऑफ, वर्बल है मोर इन टर्म्स ऑफ क्वांटम एंड वैरायटी। अब आप मुझे बोलिए कि वर्बल कैसे मोर हो सकते हैं? हमारे पास एक्सप्रेशंस ज़्यादा है। नॉन वर्बल में हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग, टच, स्पेस, डिस्टेंस, जो भी बिना बोले कम्युनिकेट कर लेता है वो नॉन वर्बल होता है। और वर्बल में सिर्फ दो ही है, क्या होता है वो? ओरल और रिटन, ठीक है। इसी से A का आंसर A रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। फिर ये जो बाकी दिए हुए हैं डिफिकल्ट टू कंट्रोल, हाँ कभी कभी हमारे गेस्चर्स, हमारे हैंड मूवमेंट्स वगैरह बोलते टाइम पर हो जाते हैं, सो दैट इज नॉन वर्बल साइंस और सिग्नल आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल, येस। एंड मोस्टली इनवॉलंटरी भी होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन हो जाते हैं विदाउट एनी सेंस। वर्बल साइंस आर ट्रस्टेड लेस, यस। यूजुअली हम फेशियल एक्सप्रेशंस और पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्या? क्योंकि वो डायरेक्टली हमें बोल देते हैं।
In which of the following types of communication the potential for getting quick, significant and reliable feedback is maximum? It is interpersonal communication. What is interpersonal communication? It is a communication between two person. More effective because one can get immediate feedback. ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन और प्राइवेट डिस्कशन, फॉर्मल मीटिंग, ये सारे होते हैं इंटरपर्सनल. इसका और एक है, इट इज़ डायनामिक इन नेचर है एंड हैज़ ग्रेटर स्कोप फॉर ग्रेप वाइन. हम ग्रेप वाइन के ऊपर आगे स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. यस, इट इज़ मोर इफेक्टिव, डिपेंड्स ऑन इंटरपर्सनल रिलेशंस, इमोशनल अपील, रोल स्किल. ठीक है. देन 21, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ मीडिया एंड इट्स परफॉर्मेंस इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग. ओके, न्यूज़पेपर, सर्कुलेशन, सिनेमा, बॉक्स ऑफिस, टेलीविजन, टीवीडी, रेडियो, आरओडी. ऑप्शन डी, रेडियो, आरओडी. रेडियो का होता है क्यूम और क्यूमुलेटिव ऑडियंस. रेडियो का क्या होता है? क्यूम और क्यूमुलेटिव ऑडियंस. ओके, ये रेडियो का होता है. ऑडियंस इज द नंबर ऑफ यूनिक पीपल ट्यून्ड इन टू अ प्रोग्राम और स्टेशन. जो वो रेडियो सुनते हैं उसके ऊपर बेस्ड है ये. न्यूज़पेपर सर्कुलेशन कितना ज़्यादा वो सर्कुलेट होता है, सिनेमा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर डिपेंड होता है. टेलीविजन होता है टीवीटी पर. बाय द वे, ये टीवीटी क्या होता है? टेलीविजन व्यूअरशिप इन 1000, मतलब टीआरपी. एक चैनल को कितने देर तक कोई इंसान देखता है, वो सारे उनका एक डेटा एनालिसिस कर जो आता है. देन एफएम क्या होता है? फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. ऑप्शन बी, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन. 22 का आंसर. ठीक है. अभी आया है सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर. ओके, नो अभी भी कम्युनिकेशन. द सिटिंग अरेंजमेंट इन अ टिपिकल क्लासरूम इन विच स्टूडेंट्स फेस द टीचर encourages a communication which give more communicative power to teacher for control. ऑप्शन बी. ये किसने सजेस्ट किया हुआ है? मैकवर्से एंड मैक्रोस्की एंड मैकवेटा. इंस्ट्रक्शनल कम्युनिकेशन थ्योरी है इसके ऊपर बेस्ड. Suggests that sitting arrangement can impact how the instructors communicate with students and how students react with one another, impacting engagement, motivation and focus. मतलब टीचर जो टीचिंग या सिटिंग अरेंजमेंट होती है, ये टीचिंग को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, लर्निंग प्रोसेस को काफ़ी इन्फ्लुएंस करती है. स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है? जैसे कि वो स्टूडेंट्स कैसे ध्यान दे रहे हैं, कितने एंगेज्ड है क्लास में, फिर कितने एंगेज्ड है उनके पार्टनर के साथ में जो आजू बाजू में बैठते हैं, ये सारा उसमें इवेलुएट करते हैं. देन वेरियस टाइप्स ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट्स कैसे कैसे होते हैं? ट्रेडिशनल, राउंड टेबल, देन हॉर्स-शू टाइप, डबल हॉर्स-शू टाइप. ट्रेडिशनल माने कि जो नीचे बैठकर होता है, फिर राउंड टेबल, टीचर यहाँ पे बीच में है, देन हॉर्स-शू ऐसे, डबल हॉर्स-शू, ग्रुप पॉड्स, ऐसे पॉड्स होते हैं ग्रुप्स के, फिर पेयर पॉड्स, ये ऐसे टाइप के. ठीक है. सो इट इज़ बेस्ड यूजुअली ट्रेडिशनल सिटिंग अरेंजमेंट है ये वाला. टिपिकल जो होता है ये ट्रेडिशनल होता है, जिसमें टीचर की तरफ फेस कर बैठते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स. फॉर अ टीचर व्हाट इज़ द ईजिएस्ट एंड क्विकेस्ट लोकेशन ऑफ गेटिंग द स्टूडेंट्स फीडबैक इन अ क्लासरूम. ओके, फीडबैक किसके? बॉडी लैंग्वेज में. स्टूडेंट्स बॉडी लैंग्वेज मैटर्स मोस्ट. अब आएगा मैथ्स का पार्ट. यस, फॉर द सिक्वेंस 1/2, 2/3, 3/4 अप टिल 9 n/n+1 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ओके, द सिक्वेंस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. यस, जैसे कि 1/2 होता है 0.5, 2/3 होता है 0.6, देन 3/4 0.75. ठीक है, इंक्रीज हो रहा है. सीक्वेंस इज बाउंडेड अबाउ बाय 0.99. नो, क्योंकि अप टिल 1, ये सीक्वेंस अप टिल 1 जा सकता है. कैसे? द सीक्वेंस इज इंक्रीजिंग एज पर द वैल्यू, मतलब जो हमारी वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ती जाएगी. तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें 1 आ सकती है. ठीक है, 1 तक वैल्यू जा सकती है. सॉरी, हाँ, मिनिमम वैल्यू 1/2 है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस इज 1. तो बाउंडेड अबाउ बाय 0.99, ये रॉन्ग है. सबसे मैक्सिमम वैल्यू 1 है. सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबाउ. यस,
देन सीक्वेंस कंटेंट्स नो नंबर बिटवीन 3/4 एंड 4/5. करेक्ट. अब 1/2, 3/4, 3/4 के बाद में क्या आएगा 4/5, फिर 5/6. ये तो करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन बी है हमारा आंसर. ठीक है. ये क्यों यहाँ तक नहीं आएगा? इन्होंने बोला है बाउंडेड अबव. अबव ये 1 तक बाउंडेड है. यहाँ पर उन्होंने बोला 0.99. अबव माने कि ऊपर की साइड, बिलो माने कि नीचे की साइड. ठीक है. और ये यहाँ पर जो बोला है बाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव, तो इसका ऐसा है कि ये 1/2 ही रहेगा, 2/3 ही रहेगा, ये इसका मतलब है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिंग्विस्टिक स्किल? नॉट अ लिंग्विस्टिक स्किल. क्वेश्चन नंबर 26. क्या लगता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, थिंकिंग. थिंकिंग इज नॉट अ लिंग्विस्टिक स्किल. 4 बेसिक लिंग्विस्टिक स्किल्स कौन से होते हैं? स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड 4th वन क्या होता है? लिसनिंग. लिसनिंग इज द 4th बेसिक स्किल. ठीक है. थिंकिंग नहीं होता है. थिंकिंग इज अ मेंटल प्रोसेस, लाइक इंट्रापर्सनल होते हैं, मतलब हम खुद में ही खुद के थिंकिंग करते हैं एंड नो रिक्वायर ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज या कुछ. सो इट इज़ नॉट अ लिंग्विस्टिक, इट इज़ मोर अ कॉग्निटिव. थिंकिंग क्या होता है? कॉग्निटिव. ओके. अगेन क्वेश्चन है, सपोज दैट x is a set of some real numbers from which of the following statements does not deduce the other statement. ओके. एंड इन केस कभी आपको इंग्लिश समझ में ना आए कुछ टर्म्स, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में भी कुछ टर्म्स है जो समझ में नहीं आते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, या संख्या मालेतील प्रत्येक संख्या 0.99 पेक्षा मोठी नाही. तो इसी वजह से हमने इसको फायनल किया था. और यहाँ पर देखो, या संख्या मालेतील प्रत्येक संख्यापेक्षा लहान असणारी एक संख्या आहे आणि यातील प्रत्येक संख्येपेक्षा मोठी असणारी एक संख्या आहे. अगर मराठी नहीं पता है तो जाने दो, लेट इट गो. बट अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप ये वाले ऑप्शन भी देख सकते हैं, जिससे कभी कभी बेसिक जो टर्म्स वर्ड्स होते हैं उससे हमें आंसर फाइंड आउट करने में ईजी जाता है. सपोज दैट x इज अ सेट ऑफ सम रियल नंबर्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट डिड्यूस द अदर स्टेटमेंट्स. ठीक है. हम इसका डायरेक्टली आंसर देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. इफ x कंटेंस एटलीस्ट 2 नंबर्स देन x कंटेंस इन्फिनिटली मैनी नंबर्स. इसमें पूछे नॉट डिड्यूस था, तो मतलब दूसरे कोई स्टेटमेंट को वो कम नहीं करेगा. समझा? देखो, बिटवीन एनी 2 रियल नंबर देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स, ये इन्होंने ऐसे बोला था. तो फिर उसके बेसिस पर बिटवीन एनी 2 नंबर, जो ऑप्शन ए है, बिटवीन एनी 2 नंबर देयर इज एटलीस्ट 1 नंबर इन एक्स. करेक्ट. इन्फिनिटली मैनी नंबर्स बोला है यहाँ पर. सी, यहाँ पर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स, सो एटलीस्ट 1 नंबर. फिर बिटवीन एनी 2 नंबर इन एक्स देयर आर एटलीस्ट 2 नंबर्स. करेक्ट. एज इन्फिनिटली मैनी नंबर्स. बिटवीन एनी 2 नंबर्स इन एक्स देयर आर इन्फिनिटली मैनी नंबर्स इन एक्स. वापस से एनी 2 नंबर्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स. तो अभी जो ये 4th स्टेटमेंट है ये ट्रू क्यों नहीं है? बिकॉज x इज अ सेट विथ एटलीस्ट 2 नंबर्स, दैट डज नॉट इम्प्लाई दैट x हैज़ इन्फिनिटली मैनी नंबर्स. यहाँ पर एटलीस्ट 2 नंबर्स जो दिया है, तो इसके वजह से ये नहीं पॉसिबल, मतलब ये नहीं कंक्लूड होता है कि x हैज़ मैनी, लाइक इन्फिनिटली मैनी नंबर्स. जैसे कि 1 2 3 x को हम बोल सकते हैं, और x हैविंग मोर देन 2 नंबर्स बट इट डज नॉट कंटेन इन्फिनाइट नंबर्स. ये एटलीस्ट 2 नंबर वाला जो टर्म आया ना, उसकी वजह से कुछ ये वाला ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने नॉट डिड्यूस बोला था, इसी वजह से ये ट्रू नहीं है. नाउ ठीक है. 28 1 मिनट. देर आर 7 persons in a party. 7 person in a party. The number of hands shaken all together in party counted with multiplication cannot be. अब cannot भी पूछा है उन्होंने. ओके, हम इसको cannot be, इसका आंसर है A 5. हैंडशेक के लिए कौन सा फॉर्मूला है? हैंडशेक के लिए फॉर्मूला है N C R. ओके, मैं टाइप करती हूँ, बेटर रहेगा. नहीं, मुझे टाइप करके नहीं चलेंगे. ठीक है. N C R इज इक्वल टू N R
n माइनस आर, ठीक है। तो अभी उसमें उन्होंने क्या बोला है, हैंड शेकन, तो आर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पर्सन, सॉरी एन है नंबर ऑफ पर्सन, और जो हमारा मिनिमम आर है जो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, और जो यस मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन है वो हो जाएगा 2, जिनके 2 के बीच में हैंडशेक होगा ना, 2 लोग हाथ मिला रहे हैं तो मिनिमम नंबर। तो कैसे हम वैल्यू डालेंगे इसमें, कैसे, और ये क्या इसका भी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट इसके लिए वो टर्म होता है 7 × 6 × 5, 3 टर्म्स यूज़ करेंगे, इस वे में होता है वो। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको लिख कर बता देती हूँ। 7 ऊपर आएगा, ठीक है, और नीचे आएगा 2, क्योंकि हमारा R 2 है, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं, 7 माइनस 2, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 7 × 6 × 5। हमने ये 3 नंबर्स क्यों लिए हैं वैसे, इसकी वजह से 2 × 2 वाला 2 आए और 5 आ जाता है, मतलब यस 2 आए और इंटू 5, तो 7 × 6 × 5 कर फिर 2 × 1, 5 × 4 × 3, ठीक है, इंटू, समझा आपको वो 7 कैसे कर रहे हैं हम लोग। अभी इसका आंसर एक्चुअली ना, उन्होंने मुझे ऑप्शन में थोड़ा कन्फ्यूजन था, बट हमें कैन नॉट भी पूछा है, द नंबर ऑफ हैंड शेकन्स ऑल टुगेदर कैन नॉट बी, मतलब 2 लोगों के बीच में होगा, तो इधर का यहाँ पर आंसर कैसे ना इवन में रहेगा, ये ऐसा उन्होंने बताया है, आंसर इवन में रहेगा, और ये जो 5 है ये ऑड आता है, इस बेसिस पर वैल्यू है। और अगर हम इसके थ्रू निकालने गए तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर हम इसके थ्रू आंसर निकालने गए तो इसका आंसर क्या आएगा, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। फिर वो हो जाएगा कि टोटल हैंडशेक्स कितने हुए, इससे हमें ये पता चलता है जो ये फॉर्मूला है, तो इसका आ जाएगा 42/2। आप ट्राई करके देख लो कैलकुलेशंस, 42/2 ही आएगा, इक्वल टू 21 लोगों में हैंडशेक्स हुए, और कितने लोगों में नहीं हुए, 5 लोगों में नहीं हुए, मिनिमम 5 नहीं होते अगर हम इस तरह से निकालने को गए। ये मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं सिर्फ ये फार्मूला रख रही हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये फार्मूला नेक्स्ट एग्जाम में काम आएगा। मैं PDF अच्छे से प्रोवाइड कर दूँगी, उसमें आप चेक कर लेना। ये फार्मूला है, इसे नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ इफ 2 डिस्टिंक्ट सर्कल इन अ प्लेन आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन दे इंटरसेक्ट इन, इसका आंसर है 29 का आंसर क्या होगा, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ये है 1 पॉइंट और ये है दूसरा पॉइंट, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसका आंसर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स भी आ सकता है, एट मोस्ट और एग्जैक्टली का मतलब एक तरह से सेम ही आता है, बट फिर भी ऑप्शन में है ऑप्शन सी, एट मोस्ट 2 पॉइंट्स। नाउ इफ द वर्ड प्रिंस इज कोडेड एज 15, 17, 81, 30, 13, 24 इन अ कोड लैंग्वेज, व्हाट शुड बी द कोड फॉर द वर्ड किंग इन द सेम लैंग्वेज। अभी मैं आपको एक ट्रिक बोलती हूँ, एग्जाम में कभी भी आप पूरी ABCD उसके साथ नंबर्स, जैसे कि ये ऐसे नंबर्स पहले से लिख कर रख दो, पेपर स्टार्ट होगा ना जैसे ये वाला कर लेना काम, क्योंकि ना ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो एक अभी ये नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है, प्रिंस P 14 नंबर पर आता है, बट P जो है ये 16 नंबर पर आता है, सॉरी P 16 नंबर पर आता है, पर -1 15, तो ये P का -1 करके हो गया है 15, देन R का हो गया है R, P के बाद में Q के बाद में R, तो R के पहले क्या होता है Q का नंबर आता है 17, ये होता है 16, Q का नंबर आता है 17, तो R का नंबर है 18, फिर I का नंबर क्या आता है, I कितने नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है, 9, फिर N नंबर कितने पर है, 14 नंबर पर है, C 3 नंबर पर है, E 5 नंबर पर है, तो ये 1 नंबर पहले चल रहा है, जैसे ये 15 चल रहा है, ये 17 चल रहा है, समझा। तो वैसे ही किंग का कैसे आएगा, किंग कितने नंबर पर आएगा, K कितने नंबर पर होता है, K 11 नंबर पर होता है, तो 10, फिर I कितने नंबर पर होता है, I होता है 9 नंबर पर, तो 8, फिर N कितने नंबर पर है यहाँ पर 14 नंबर पर, तो इसका हो जाएगा 13, और G कितने नंबर पर आता है 7 नंबर पर, तो उसका आ जाएगा 6, तो ऑप्शन A, ठीक है।
अभी कंक्लूजन वाला क्वेश्चन. ऑल द बॉलर्स ऑफ माई टीम आर विकेट टेकर्स. वरुण इज नॉट, हम इसका फॉन्ट छोटा करते हैं ताकि क्लियर रहे. ठीक है, ऑल बॉलर्स आर विकेट टेकर्स. ठीक है, विकेट टेकर्स है, ऑल बॉलर्स है जो होते हैं विकेट टेकर्स भी. देन वरुण इज नॉट विकेट टेकिंग बॉलर. वरुण इज नॉट अ विकेट टेकिंग बॉलर. वरुण इज अ स्पिन बॉलर. कंक्लूजन वर्ड, वरुण इज नॉट अ बॉलर ऑफ माई टीम. ठीक है, वरुण इज नॉट अ बॉलर. सो इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर क्लियरली वो क्या मेंशन कर रहा है कि वरुण इज नॉट अ बॉलर, क्योंकि वो इसके वरुण विकेट टेकिंग करता ही नहीं, विकेट टेकर है ही नहीं, तो बेसिकली वो इसके टीम का बॉलर नहीं है. मैं भी बैट्समैन हूँगा. ठीक है. ऑल एप्पल्स आर मैंगोज. ऑल मैंगोज आर बनानास. ऑल एप्पल्स आर बनानास. सम मैंगोज आर बनानास. ऑल एप्पल्स आर मैंगोज. ये हो गए हमारे एप्पल्स जो कि है मैंगो. देन ऑल मैंगोज आर बनानास. सो ऑल एप्पल्स आर बनानास. यस. फिर सम बनानास आर मैंगोज. यस. ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द वर्ड फ्रॉग इज कोडेड एज 719168, देन व्हाट शुड बी द कोड फॉर ट्रिप? ओके, अगेन वैसे ही नंबर है, वैसे ही ठीक वैसे ही तरह से दिया हुआ है. फ्रॉग का नंबर क्या आता है? एफ कितने नंबर पर आता है? 6 नंबर पर आता है. बट यहाँ पर उन्होंने +1 दिया है. सी 7 लिया है. आर कितने नंबर पर था? अभी हमने चेक किया था. आर होता है 18 नंबर पर है, तो आर के लिए +1 कितना आएगा? 19. उन्होंने 19 ले लिया. फिर जब ना समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे ग्रुप्स में डिवाइड करना. यूजुअली तो हमने सारे कवर कर लिया अभी तक के जो ये लेटर्स अल्फ़ाबेट्स पर जो क्वेश्चन है, ये सारे कवर हो गए किस टाइप में आते हैं. ओ कितने नंबर पर है? 15 नंबर पर है, तो +1 16. देन जी कितने नंबर पर था? 7 नंबर पर, तो इसका +1 8. अभी यहाँ पर हमको क्वेश्चन किसमें है? ट्रिप. टी कितने नंबर पर है? 20. सो 21. अब ये 2 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन है. 21. ठीक है, तो एलिमिनेशन तो नहीं होगा. देन आर कितने नंबर पर है? यही पर था 18, तो अभी हो गया 19. फिर भी हमें आंसर पता रहना चाहिए पूरा. फिर आया आई कितने नंबर पर आता है? 9, बट इट इज़ अभी 10 हो जाएगा +1. और पी कितने नंबर पर है? पी इज़ इन 16 नंबर, तो यहाँ पर हो जाएगा 17. ऑप्शन बी. आंसर इज ऑप्शन बी. मैंने क्या बोला है? आप सारे अल्फ़ाबेट्स एक बार लिख लेना नंबर्स के साथ में, तो काफ़ी ईजी हो जाता है. वापस से अल्फ़ाबेट का क्वेश्चन है. ऑड वन आउट. FEG TSU NML RQS. ओके, FEG TSU -1 + 2 F -1E + 2 G. ओके, ये वाला कोड है ये. ठीक है. T -1S + 2 U. ठीक है. RN -1L M + 1L. नहीं, दोनों भी -1 -2. सो इसका आंसर ये -2 RQS -1 + 2. करेक्ट. सो ऑप्शन इज सी. 5 players PQRST आर प्लेइंग कार्ड्स ऑन अ टेबल फेसिंग द सेंटर. P इज ऑन द लेफ्ट. या भी 5 लोगों को ऐसे ड्रॉ करने का, एक सर्कल बनाने का, एक सर्कल लेने का, ऐसे सर्कल, फिर उसमें 5 ऐसे एरोज कर देने के, जिससे कि वो इजी हो जाता है. तो यहाँ पे क्या है? पहली कंडीशन, P इज ऑन लेफ्ट ऑफ Q बट नॉट अ नेबर ऑफ T. ठीक है. P यहाँ पर अगर हम Q लिखते हैं, Q यहाँ ये सेंटर को फेस कर रहा है, सबके फेस यहाँ पर है. Q का लेफ्ट का आएगा P, यहाँ पर P, बट नॉट अ नेबर ऑफ T. ओके, तो ठीक है, नेबर नहीं है. देन S इज ऑन राइट ऑफ R एंड नॉट अ नेबर ऑफ Q. मतलब यहाँ पर R तो नहीं है, तो यहाँ पर S इज ऑन, अभी S सेंटर में R के राइट में है. तो अगर हम R को P के बाजू में लिखेंगे, सॉरी R को हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इसका राइट हैंड ही इस साइड में आएगा, इस साइड में राइट हैंड आएगा, तो वो राइट हैंड में S. ठीक है. एंड T इज ऑन द राइट ऑफ Q. सी यहाँ पर T है राइट में. हु इज ऑन द राइट ऑफ S? अभी इसका राइट है, S का राइट है P. सो ऑप्शन बी, P. Which of the alternatives will complete the following letter series? EGF, IKJ, QSR, UVW. Sorry.
EGF IGIKJ। ओके ओके ओके, तो है ना, इसमें है +2 और अगर हम E से कंसिडर करेंगे तो ये +2 आएगा और ये +1, ठीक है, उस बेसिस पर है। I के +2 है K और +1 है J। देन ऐसे ही ऑप्शन में क्या देखना है, MON ओके, ये भी +2 वाला है सीन। LNM नो, यस पॉसिबल। NPO ओके, MNO, तो ये और एक बेसिस है E+4 I आता है, वैसे ही I+E+4 I, तो I+4 क्या आएगा, I+4 होता है M। हाँ, I+4 M होता है, बट अभी M के भी 2 क्वेश्चंस दिए, तो M का सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है A, बिकॉज +2 पहले चाहिए देन +1 चाहिए, ठीक है, MNO नहीं आएगा, तो ऑप्शन है A। वैसे ही M+4 क्या होता है, Q होता है, फिर Q+4 Q, ईजी। ये पेपर में काफ़ी सारे थे जो अल्फ़ाबेट के बेस्ड थे, तो इसीलिए हमें अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। ये ना थोड़े बड़े कैलकुलेशन के क्वेश्चन हैं और मैं इसे अभी करने में मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। हमारा अगर वीडियो में टाइम बचा तो हम लोग एंड में ये क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए आप आंसर्स देख लीजिए। 37 का आंसर है ऑप्शन सी 669। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल इन इंस्टीट्यूट्स एन एंड ओ में कितने सारे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट है, एन और ओ में 15 एंड 12% का, फिर टोटल के साथ में उनको कैलकुलेट करना वैसे, ठीक है, बेसिकली ठीक है, हम कंटिन्यू कर लेते हैं इसके साथ ही। तो यहाँ पर टोटल कितना है, ये क्यों बंद हो रहा है, टोटल है 15% 24, तो हम पहले एन का करते हैं, एन का 15% बाय 24700 इंटू 100 इज इक्वल टू क्या आता है, 15 इंटू 247। मैंने सॉरी मैंने गलती की थी, यहाँ पे मल्टीप्लाई आता है, फिफ्टीन इंटू 247, 15% कर ओके 15 इंटू 247, सो इज इक्वल टू, वाई इट इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली मैन, इज इक्वल टू 247, तो इसका आंसर है 3705। कैलकुलेट कर लीजिए आप अलग से। फिर अभी ओ का भी पूछा है, तो ओ का 12% है, तो ओ का 12%, 12 इंटू 24700 बाय 100, सॉरी हाँ मैंने यहाँ पर गलती की थी, बाय 100 था, मैंने वो गलत किया, येस आई गॉट माई मिस्टेक, सॉरी इज इक्वल टू, अभी 12 इंटू 247 इज इक्वल टू कितना आता है, 2964, तो अभी ठीक है 2964, तो अभी इनको ऐड करना है बेसिकली, 3705 प्लस 2964 इज इक्वल टू 6669, हमारा आंसर 37 का आंसर है सी। फिर अभी वापस क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन इंस्टीट्यूट के, ठीक है, अभी के में क्यू 18 14, ठीक है, अभी इन दोनों का भी उसी वे में निकालना है जैसे अभी हमने निकाला था, एग्जैक्टली वही वे में हम यहाँ पर करते हुए कैलकुलेशंस, ठीक है, क्यू 18 इंटू टोटल कितना है 27300 बाय 100 इज इक्वल टू 18 इंटू 273, 18 इंटू 273, तो आंसर क्या आएगा 4914। अभी हम आगे किसका देखेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स का, 14 इंटू 24700 बाय 100, सिमिलरली 14 इंटू 247, सो आंसर इज 3458, सो अभी 4914 प्लस 3458 इज इक्वल टू
क्या आंसर है? 8372। आंसर है 8372, ऑप्शन डी 8372। अभी ठीक है, इस पे 4 क्वेश्चन है, 37, 38, 39, 40, इसीलिए मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी, बट स्टिल ओके, साथ में ही कर लेंगे तो वो कवर हो जाता है। 39, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल्स रिस्पेक्टिवली फ्रॉम इंस्टीट्यूट आर? वापस से वैसे ही है वो सारा मेथड, परसेंटेज के बेसिस पर, सेम वे में। आर में कितने परसेंट है? 14% ऑफ 2370 और 21% ऑफ 2470। हम डायरेक्टली डेटा निकालते हैं, डायरेक्टली वैल्यूज पुट ऑन करते हैं। 18%, 14% सॉरी 14 इंटू 24700, फिर उसका बाय 100 कर देंगे। डायरेक्टली आंसर क्या आता है? नहीं सॉरी 2473 2730 27300। ओके, तो आंसर है, डायरेक्टली आंसर निकाल लेंगे आप ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। 3822, फिर उसके बाद में 14%, 21%, 21 इंटू 24700 बाय 100। आंसर क्या है? 5187। सो अभी रेशो निकालना है 5187 का, 5187 बाय इस टू 3822। अभी मैथ्स अच्छा है तो निकाल लो, वरना मैं आंसर दे देती हूँ डायरेक्टली 19:14। या आपके मैथ्स क्या आप आपके 2 के टेबल से करते बैठो या जैसे करना है वैसे करो, बट आंसर मैं दे देती हूँ। अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं डालेंगे। सॉरी, डी, ऑप्शन डी, 39 का ऑप्शन है डी। व्हाट इज द रेशो बिटवीन 40, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट आर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम इंस्टीट्यूट आर? पी। ओके, अभी हमने देखा आर का तो हमने निकाल लिया 21% वाला, 5187 आर का है। अभी हम पी का निकाल लेंगे साथ में। पी का अंडर ग्रेजुएट में कितने, सॉरी ग्रेजुएट में कितने परसेंट है? 13% है ग्रेजुएट में। सो यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे 13 इंटू 27300 बाय 100। सो 13% ऑफ 2730, 13 इंटू 273। मैं इसीलिए पूरा कैलकुलेशन बता रही हूँ ताकि कोई वीक स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए ये इजी रहे। यस, मुझे पता है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैथ्स डिफ़िकल्ट होता है, तो उनके लिए हमने ये मैथ्स का पार्ट मैं इसीलिए पूरा बता रही हूँ। 3549। अभी रेशो क्या आएगा? 19:13, ऑप्शन डी। इसका भी ऑप्शन है डी, ठीक है। 40 का भी ऑप्शन है डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, और एग्जाम में अगर डी 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 कंटिन्यू आए ना तो डरना नहीं चाहिए। इफ़ ओके, वापस से है डेटा इंटरप्रिटेशन, उसके क्वेश्चन 5 होते हैं डेटा के, तो वो 5 इसीलिए बता रही हूँ ताकि इजी जाए। इफ़ द टोटल एरिया अंडर जवार इज 1.5 मिलियन एकर्स, एरिया अंडर राइस, अच्छा परसेंटेज के बेसिस पर दिया है। जवार के अंदर है 5%, तो 1.5 हुआ। अब राइस के अंदर है 20%, तो कितना? तो इसको बेसिकली एकदम सोपा, 20 इधर x 5 इज इक्वल टू 1.5 ऐसा लेने का। समझा? नहीं समझा? 20 का अगर x है तो 5 का 1.5 बताने का, तो फिर 20 इंटू 1.5, 100 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 5 और 10 और 5, 20 एंड 5 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, x इज इक्वल टू 4 तो 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4 प्लस 2 6 मिलियन एकर्स। इसका आंसर आता है 6 मिलियन एकर्स, 42। इफ द प्रोडक्शन ऑफ wheat is 6 times that of barley, what is the ratio between the yield per acre of wheat and barley? Okay. Production of wheat is 6 times that of barley. What is the ratio between yield per acre? Okay. वीट के अंदर का कितना एरिया है? क्यों बंद हो जा रहा है? वीट के अंदर कितना एरिया है? 20%, और बार्ले के अंदर 10%। तो परसेंटेज वाइज में ये 20 आएगा और ये 10 आएगा।
परसेंटेज वाइज में, क्योंकि कैसे बता रही हूँ मैं, देखो 20 × 100 डिवाइडेड बाय 100 परसेंटेज करने के लिए हम इस तरह से यूज़ करते हैं। तो ये दोनों कैंसिल, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 100। ठीक है, यील्ड पर एकड़ कैसे, उसका एक फॉर्मूला है, मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर लिखती हूँ। प्रोडक्शन यील्ड पर एकड़ का फॉर्मूला देखो, यील्ड पर एकड़ यील्ड पर एकड़ इज इक्वल टू प्रोडक्शन बाय एरिया, प्रोडक्शन बाय एरिया। ठीक है, प्रोडक्शन बाय एरिया ये वाला फॉर्मूला है। तो एरिया ऑफ वीट कितना है 20, एरिया ऑफ बार्ले कितना है, वीट का 20 है और बार्ले का 10 है। तो अभी यही फॉर्मूला के बेसिस पर हमको कैलकुलेट करना है। यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट निकालेंगे सबसे पहले तो यील्ड पर एकड़ ऑफ वीट कितना है 6 × x/20, क्योंकि हमें प्रोडक्शन नहीं पता है, और बार्ले का प्रोडक्शन x/10, ये बार्ले का हो गया और ये वीट का हो गया। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ पे क्या पूछा है, रेशो। तो रेशो के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 6 × x/20 डिवाइडेड बाय x/10, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ये एक बेसिक सा थिंग है, ये x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये जो 6 × 10/20 आता है, ये 1 2 हो गया कैंसिल, 6:2 क्या, 6:2, तो आंसर है 3:1। 2 3 6:1, ऑप्शन इज 42 का आंसर है बी। अभी हम और आगे जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑफ इंटरनेट बेस्ड फैसिलिटीज़। ओके, क्रोनोलॉजी पूछा है, तो सबसे पहले है हॉटमेल, देन गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप। हॉटमेल कब आया था 96, सबीर भाटिया 96, गूगल 98। पहले ये ऐसे क्वेश्चन आते थे, आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। व्हाट्सएप 2014, व्हाट्सएप है 2009। आइडेंटिफाई द ऑड एलिमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स बेसिक फंक्शन। इसका आंसर है MS ऑफिस। MS ऑफिस ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो बाकी है विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, और MS ऑफिस है ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशन, डेटा तो प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह के लिए। देन ओके, 45 का आंसर है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट PDF, फुल फॉर्म ऑफ PDF इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर फाइल सिस्टम। इसका आंसर दिया हुआ ही नहीं है, ये क्वेश्चन ड्रॉप हो चुका है, क्योंकि पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आता है यहाँ पर, फॉर्मेट, तो भी आंसर ये डी होता, पर यहाँ पर फाइल दिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड डेटा स्टोरेज फैसिलिटी। इसके आंसर्स ना वैलिड आंसर्स है, क्योंकि 46 का आंसर हमें ऐसा दिया हुआ था H और A, मतलब कि इसका आंसर की में H और A ऐसा दिया हुआ है। H का मतलब है B, H का मतलब है B और C, और फिर A भी दिया है, तो प्ले स्टोर। अब प्ले स्टोर तो पता नहीं, पर जीमेल स्टोरेज और ड्रॉप बॉक्स उन्होंने आंसर बताया इसका, क्लाउड बेस्ड स्टोरेज, जीमेल स्टोरेज, ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स क्या है, बेसिकली कॉपीज ऑफ ऑल डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स स्टोर करता है ये फॉर 30 डेज। हमारे फ़ोन में भी होता है ना 30 डेज़ का वो फॉर्मेट होता है उनका, कि 30 डेज तक रहेगा, और जो बैकअप किया हुआ है गूगल का वो 60 डेज तक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ वेब 2.0 फैसिलिटीज। कंटेंट ऑन दिस फैसिलिटीज इज जनरेटेड मोस्टली बाय यूजर्स, ऑप्शन बी। वेब 2.0 इट इज़ अ पार्टिसिपेटरी एंड सोशल वेब। ठीक है, इट वॉज पॉपुलराइज्ड in 2004. This systems allows interoperability, used created contents and participatory culture, मतलब कि सब लोग पार्टिसिपेट करें, जैसे अभी हमारा सोशल मीडिया। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सेल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, AVI फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HDD स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज फैसिलिटी। ऑप्शन ए उबंटू इज ऑपरेटिंग सिस्टम। 48 का आंसर है ए। वैसे उबंटू क्या है, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, प्रोवाइड्स बेसिक फंक्शनैलिटी फॉर डिवाइसेस, मैनेजेस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मेमोरी। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसके। अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड इन थर्मल पावर प्लांट्स इज यूज फॉर, इसके भी दो आंसर है, मेकिंग ब्रिक्स एंड रोड मेकिंग। फ्लाई ऐश प्रोड्यूस इन स्मॉल डार्क फ्लेक्स बाय बर्निंग ऑफ पाउडर्ड कोल और ऑफन मटेरियल्स और अदर मटेरियल्स एंड कैरिड इनटू एयर। वो जो राख उसको बोलते हैं फ्लाई ऐश। यस, उससे रोड्स भी बना सकते हैं और ब्रिक्स भी बना सकते हैं।
प्राइम मटेरियल इन सीमेंट बेस्ड मटेरियल्स। सीमेंट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसका ये प्राइम मटेरियल होता है। फ्लाई ऐश। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कितना तारीख को होता है? 5 जून। ये तो भूलो मत, 5 जून वाटर डे। वर्ल्ड आज वाटर डे है। 22 मार्च इज वर्ल्ड वाटर डे, 5 जून। Which of the following act gives rights to citizens to file cases against violation of environmental norms? Option A, Environment Protection Act 1986। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। यस, कब बनाया गया था? आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। मैंने सारे इनके बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। Which of the following gases is largely responsible for global warming? Carbon dioxide, CO2, that warms the earth's surface. ग्रीन हाउस क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं? अब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ हायर वेवलेंथ एंड वार्म द एटमॉस्फेयर। जिसमें ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? कोल। ये क्या है? कन्वेंशनल है। इट इज़ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। बाकी सोलार, थर्मल, जियोथर्मल, टाइडल ये सारे कन्वेंशनल हैं। तो नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल का डेफिनेशन, नॉन कन्वेंशनल होते हैं रिन्यूएबल भी। नॉन कन्वेंशनल यानी कि रिन्यूएबल भी, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल इन अबंडेंस, जो भरपूर मात्रा में अवेलेबल होता है और जो ईजिली अवेलेबल भी होता है, ईजिली रीजनरेट होता है। ठीक है, जो कन्वेंशनल होते हैं उनको नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं। कन्फ्यूजन हो जाता है ना ऐसे नाम से, नॉन रिन्यूएबल। ये लिमिटेड क्वांटिटी में है, टेक मेनी ईयर्स टू फॉर्म। इनफैक्ट बहुत टाइम लगता है। अगर एक बार ख़त्म हो गए तो रीजनरेट होने में बरसों लग जाएगी, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अभी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द कार्निवोर्स? टाइगर। फूड चेन में सबसे ऊपर कौन आएगा? टाइगर। टर्शियरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो टर्शियरी कौन है? टाइगर। Which of the following e-repository is for doctoral research of Indian universities? Option B, शोध गंगा, a reservoir of Indian thesis. Digital repository of Indian electronic thesis and dissertations set up by InfluMnet Center. Which of the following agency is to formulate policies of higher education? MHRD, Ministry of Education, जिसका नाम हो गया था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, इसका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन होता है जो ये पॉलिसीज बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया? नैक। यूनिवर्सिटीज़ पे होते हैं ना नैक रेटिंग्स, A+, बस, तो वो नैक होता है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। उसके नाम में ही है। बाय द वे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, फिर NCETE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, और AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये सारे स्टैट्यूटरी बॉडीज है सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एज पर द UGC 10-point grading system for CBSE, the letter grade A+ means? ऑप्शन सी, एक्सीलेंट। A+ माने एक्सीलेंट। क्रेडिट बेस्ड, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ओके, कन्वीनियंट है। सीकर हैज़ द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज देयर कोर्स फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ इलेक्टिव कोर एंड सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। तो मीनिंग ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या है, हम एक बार वो चेक कर लेते हैं। चॉइस बेस्ड यानी कि चॉइस ऑफ मल्टीपल कोर्सेज। ग्रेडिंग है, मार्क्स सिक्योर्ड इन लेटर ग्रेड यानी कि ABCD। फिर सेमिस्टर, लर्नर टीचर एंगेजमेंट क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड सेमेस्टर वाइज, मतलब हर सेमेस्टर में पता चलेगा। और क्रेडिट क्या है? क्लास आवर्स पर वीक कैरीज एडिशनल इंपॉर्टेंस। फिर असेसमेंट क्या होता है? इन द फॉर्म ऑफ क्लासरूम अटेंडेंस, मिड टर्म टेस्ट एक्सेट्रा। फिर इसमें लेटर ग्रेड्स क्या होते हैं? O होता है सबसे पहले, तो O यानी कि आउटस्टैंडिंग, फिर A+ एक्सीलेंट, फिर जो A है वो वेरी गुड आता है, फिर B पॉजिटिव, B+ होता है गुड, ये B+ गुड होता है, फिर B है अबव एवरेज, B अबव एवरेज आता है, फिर C आता है एवरेज, फिर P आता है पास के लिए, F आता है फेल के लिए, और A भी आता है एब्सेंट के लिए। ठीक है, ये है 10-point ग्रेडिंग सिस्टम UGC का। ऑप्शन अब आगे, अ यूनिट बाय विच कोर्स वर्क इज मेजर्ड? इट इज़ क्रेडिट। इट इज़ अ यूनिट
बाय विच द कोर्स वर्क इज मेजर्ड, इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ एन आवर ऑफ टीचिंग, मतलब कितने घंटे पढ़ाते हैं, और प्रैक्टिकल वर्क और फील्ड वर्क, ये सिर्फ घंटे, कितने घंटों का पढ़ाना है, लिखाना है, फील्ड वर्क है। 1 क्रेडिट मीन्स 1 आवर इज इक्वल टू 1 आवर ऑफ लेक्चर और 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल और फील्ड वर्क। ठीक है, ग्रेड माने कि अभी जो हमने देखा था ग्रेड A, B, C, D, ये चॉइस बेस्ड, ये भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का पार्ट है। CBC अभी हमने क्रेडिट का देखा था ना, आवर्स, हाउ मेनी आवर्स फॉर स्टडी, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वॉज द फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। लिटिल टायर्ड, हैदराबाद में है ये। कब स्टार्ट हुई थी? 1982 में। वैसे हम YCMO भी देख लेते हैं। यशवंतराव चौहान कब स्टार्ट हुई थी? यशवंतराव चौहान 1989 में हुई थी, 1989। इंदिरा गांधी, इग्नू का ईयर क्या है? इग्नू का ईयर दिया हुआ नहीं है, मैंने लिखना रहेगा। ओके, नेताजी सुभाष बोस यूनिवर्सिटी कोलकाता में है, 1997, ये 97 में स्टार्ट हुई थी। मैंने इग्नू का ओके रह गया लिखना, ठीक है, 1 मिनट। ओके, इग्नू कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1985 में। इग्नू 1985 में हुआ था, मेरे नोट्स में से मिसप्लेस हो गया। इग्नू वॉज इन 1985। ठीक है, एनी मोर डाउट्स, क्यूरीज, जो भी है आप मुझे इसी पर कमेंट कर भी बता सकते हैं, और एल्स यू कैन आस्क मी थ्रू माई टेलीग्राम चैनल। होप यू लाइक द सेशन, प्लीज डू लाइक, शेयर with your friends. Thank you for watching the video. Have a great day, have a great night and enjoy learning. Stay motivated, exam पास में आ रही है. Thank you.